पग में फूल खिले हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, ये है आपके डीजे मैम की कामना. So happy Ganesh Chaturthi to all my dear kids on this auspicious occasion on a beautiful day. We'll start with NEET CBSE 2022 11th board. Will start from scratch, the very important chapter and the very easiest one. Okay, so we always neglect this kind of chapters, but we cannot, right? So we're starting from zero. And how many of you are ready for the session? Come on in the chat box, my dear kids. How are you, all of you? कैसे हो आप सब? How was your day? Was it good? Yeah, in the chat box, come on, write it down. Mahol bana do, everyone. So we are starting today's lecture. We're starting from the first, very important chapter, underrated chapter. Okay, but when it comes to NEET exam, it's very important, right? You can expect one or two questions from this chapter. Okay, so the living world, what is living and diversity in living world? So I've divided this chapter into three parts, L1, L2 and L3. Okay, and this is the first lecture on living world, what is living and diversity in living world. And yes, so with your Diksha girl ma'am, biology expert, चलो start करते हैं आज का session. But yes, don't forget that Sumaya ma'am is really helping me in preparing the slides. So बच्चों, one heart from Sumaya ma'am and one subscribe button for We Need Made Easy. चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन. एंड आई होप दैट गणेश जी shower his love, his blessing to all my kids out there. And yes, so yesterday I had sent one homework. If you had seen organisms and population, 10 questions, okay, objective questions, right? So please try to solve them. If you have any doubt, you can ask me. Clear? So for that, those who are not getting the homework because आपने अभी तक लिंक ज्वाइन नहीं किया है, सो डाउनलोड द टेलीग्राम, join the link, we need official. And yes, you can also get a chance to win Vedanta t-shirts. Chalo, so let's just go ahead. And the new batch already started from 28th August, right? So there are so many features which you can see. There will be tests, there will be booster rank quizzes, there will be much more recorded sessions, mock test honge, question papers hoga, and what not. And only on this channel we need made easy. Okay, so yes, coming to the NEET 2020 वाले जो मेरे बच्चे हैं, those who are worried about their NEET 2020, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस. Vedantu is here with the lightning deal 1999. But yes, you have to apply the coupon code DKCC. So पहले क्या करना है, let me just tell you the step. First, you have to go to the link vdnt.in/neetcc. Then click on enroll now. Click on I have a coupon code and apply the coupon DKCC so that you can avail that lightning deal. And if anyone wants to join the 1 year long subscription वाला बैच जिसमें आपको और ज़्यादा benefit होगा, live interactive classes, test series, assignments, notes, and remember my dear kids, these classes can be in Hindi also and English also depending on what you prefer, right? So for that also vdnt.in/ytpro पे जाओ, link आपके description पे available है, check कर लेना, ठीक है? And yes, so how you have to avail this, a very important part I'm telling you. ग्रेड सेलेक्ट कर लेना, 11th में हो, 12th में, you're preparing for NEET 2022, you're preparing for NEET 2021, so then accordingly NEET UG 2021 and NEET UG 2022. चलो ठीक है. So इसके लिए I will tell you that there is a offer for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months. But if you see the saving amount, right, you can save more when it is for the 1 year. And obviously 1 year का लोगे तो starting from zero you will be starting with us and आप वो journey पूरा end तक करोगे, ठीक है? 1 month, 3 months, 6 months में you can miss some chapters. So remember, I feel this is far better for you. So what is the curriculum? So it has structured long-term batch, okay, according to your syllabus. There could be micro courses or as well, right? So this is a very important feature. So let's say if you have some doubt in some of the chapters which have already been taught in your regular sessions with Vedantu, you can go for the micro courses, right? कंप्लीट माइक्रो कोर्सेज, कंप्लीट क्रैश कोर्स भी होगा. कोई भी क्रैश कोर्स आने वाला है माय डियर किड्स, लाइक केवीपीवाई का, नीट का, कोई भी एग्जाम के अगर क्रैश कोर्स है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है. दैट इज इंक्लूडेड इन द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन बैच. फ्रीडम टू मेक योर ओन स्टडी प्लान एंड करिकुलम. दे विल बी टेस्ट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट. असाइनमेंट्स, लर्निंग मटेरियल एंड द रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कि हाँ भाई मेरा बेटा और मेरी बेटी कैसा कर रहे हैं. सो योर पेरेंट्स शुड नो, इवन यू शुड नो दैट हाउ यू आर डूइंग, राइट? सो टू अवेल दिस 15% डिस्काउंट ऑन द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन बैच, you have to go to the link
vdnt.in/ytpro. सेम वे एनरोल करना एंड उसके बाद अप्लाई द कोड DK Pro एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट. सो यू कैन सी 27,000 में यू आर गेटिंग द whole 1 year physics, chemistry, biology for the NEET batch. Clear? So code याद रखना DK Pro. Yes, so this is the calendar for today. So already you had zoology classes morning में, ठीक है? So 3:30. So now it's 4:30, right? So leaving world मैम is teaching and already live हमने ले लिया है 3:30 पे. Okay, so tricks to remember cells and their functions. Then you will be having your chemistry classes and yes, motivation, how to manage 12th board and NEET 2021. Okay, so let's just go ahead with the chapter. So here we go, introducing the chapter Living World. So what are the key points that we are going to study in this chapter? ठीक है, हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है ना. तो गणेश जी को याद कर लो सब लोग एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सब कुछ शून्य से शुरू होता है और शून्य के आगे अगर एक लगा दो और बहुत सारे शून्य अगर हैं भी तो ये देख लो कितने बन गए, राइट. सो शून्य हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू. लेट्स जस्ट गो अहेड. व्हाट इज लिविंग, characteristic of a living organism and diversity in the living world. So what according to you is a living organism? In the chat box आपको क्या लगता है एक living organism क्या होता है, उसके characteristics क्या होते हैं? Anyone? Yes, so those who are saying that yes ma'am, living is someone who reproduces, someone who can grow, but exactly which features are defining the living organism? So let's just study that. The first point, organisms exhibiting growth, very important, development, very important, responsiveness, very important, adaptation and reproduction are called living beings. मतलब ऐसा एक organism जो grow करेगा, develop करेगा, response देगा किसी भी stimulus को, adapt कर सकता है for survival and reproduction. They're all known as living beings. You can see so many animals. कौन कौन से animals दिख रहे हैं आपको? You can see a monkey, you can see a fungi, you can see a tortoise, you can see a butterfly, you can see fish, you can see flower, salamanders, right? You can see mice, cute mice. Okay, this one. So many animals, they're all living organisms only if they show growth, अगर उनके पास development है, अगर responsiveness है, अगर adaptation है, अगर reproduction है. So let's just start with the first character of a living organism. The first character says the cellular structure. All living organisms are made up of one or more cells. मतलब अगर आप किसी को living बोलते हो तो एक सेल तो बॉस बनता है, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल तो बनता है, राइट. कैन यू कॉल एनीवन लिविंग विदाउट जेनेटिक मटेरियल? नो. प्लांट्स हैव डीएनए, वी हैव डीएनए, राइट. तो जिनके पास जेनेटिक मटेरियल, जिनके पास यूनिसेलुलर है वो, या मल्टीसेलुलर. Now the question comes, are the unicellular organisms living? That is very important. क्या बैक्टीरिया लिविंग है? क्या आर्कियोबैक्टीरिया लिविंग है? They are unicellular, right, my dear kids? Protista is also unicellular. Are they living? Fungus is unicellular. Are they living? We only say plants and animals are living. So because not only this that एक सेल हो गया या एक से ज्यादा सेल हो गया तो हमने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया, जनहित में जारी, है ना. जनता जवाब चाहती है कि ये लिविंग है या नहीं है. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ एक सेल के क्राइटेरिया को हम देखें, यूनिसेलुलर के क्राइटेरिया या मल्टी सेलुलर के क्राइटेरिया को, तो दैट कुड नॉट गिव द एग्जैक्ट, आई कैन से, रिपोर्ट कार्ड, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, राइट, कि हाँ मैं तो भैया लिविंग हूँ, राइट. सो दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, समथिंग विच कैन डिफाइन द ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अगर कोई भी इंसान लिविंग है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इट विल डेफिनेटली शो सम बायोलॉजिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी. ठीक है, खाना खाते हैं, राइट, वी डाइजेस्ट द फूड, आवाज आती है ना. वो आवाज नहीं, वो गुड़गुड़ वाली डिफरेंट आवाज. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर ईटिंग एंड यू are very much happy, like after eating you feel satisfied. So your stomach, you know, the reactions you can feel, sometimes you feel something is going inside, right? So these biological reactions, the sum total of all the reactions taking place inside the living system, इसको क्या बोलेंगे? Metabolism. Clear? Everyone, right? All of you understood? So it's a very easy concept, easy peasy concept है बिल्कुल, है ना. चलो, so metabolism हो गया.
अब मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती है माय डियर किड्स. मेटाबॉलिज्म कुड बी वन टाइप दैट इज एनाबॉलिज्म एंड दूसरा है कैटाबॉलिज्म. हु कैन टेल मी व्हाट इज एना एंड व्हाट इज कैटा? एंड मैं आपको बताऊंगी कैसे याद रखना है. ठीक है, आई टेल यू, यू गेट कंफ्यूज. सो यू कैन सी द डायग्राम, अ ब्यूटीफुल डायग्राम. ये देखो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है ना, देखो ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स. दैट इज एना. सो एना इज कंस्ट्रक्टिव. आई गेस यू कैन नॉट सी हियर. एक मिनट रुक जाओ. हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के. मतलब आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं, दैट कुड बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, सो व्हाट इज दैट? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हो. सो दैट टाइम एनर्जी इज रिलीज्ड. एंड व्हेन एनर्जी इज रिलीज, व्हाट इज द रिएक्शन व्हेन यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री? उस रिएक्शन का नाम क्या होता है जब एनर्जी रिलीज होती है? एंडो और एक्सो गाइस. एंडो और एक्सो इन द चैट बॉक्स. एंडो एक्सो क्या होता है? ठीक है, मेंडो मत लिख देना, मेंडो वाला कोई रिएक्शन नहीं है. एंडो और एक्सो, इट्स एक्सोथर्मिक, राइट? जब हम एनर्जी रिलीज करेंगे. सो इट्स का मतलब एनाबॉलिज्म जो होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन where smaller molecules join together to form a larger molecules and releasing energy. So it becomes an exothermic reaction and that is anabolism. Catabolism में हम क्या कर रहे हैं? We are breaking down. ठीक है, we are breaking down a large molecule. Can you see that? A large molecule coming broken down into small छोटू छोटू molecules. So that time we require एनर्जी. क्लियर? हमें अगर एक लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ना है मेरे बच्चों, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट? ठीक है, सो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज क्लियर. ओके, सो आई जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप लैब में भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट वर्किंग इन लैब्स. इवन आई वाज वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज इन पुणे, basically I was working in a lab and we used to do some reactions outside the body. Outside the body means in vitro conditions. In vitro means laboratory conditions. Laboratory conditions, right? So in this laboratory conditions we are also doing metabolic reactions, but वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं होंगे ना, क्योंकि वो आपकी बॉडी में नहीं होते. सो रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कुड बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. सेल के अलावा हम बाहर भी रिएक्शंस कर सकते हैं इन लैब, बट दीज रिएक्शंस आर नॉट लिविंग थिंग्स. तो वो रिएक्शन की वजह से हम उस एक्सपेरिमेंट को ये नहीं बोल सकते कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. वी आर जस्ट डूइंग अ रिएक्शन. So they are not biological reactions. So remember, metabolic reactions in the cell-free system, in laboratory conditions. क्या वो एक असल जिंदगी में living things हैं? नहीं है. वो सिर्फ एक reaction है. ठीक है? वो सिर्फ एक biological reaction हो सकता है, एक metabolic reaction हो सकता है, isolated है, in vitro है, but उससे हम living thing नहीं बोल सकते. So जब हम living things की बात कर रहे हैं ना मेरे बच्चों, so ये याद रखना, ठीक है, कि क्या वो सिर्फ आपके सेल के अंदर होना चाहिए, मतलब बॉडी के अंदर होना चाहिए, राइट? सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. बट इसको याद कैसे रखोगे? सो कैटा को तो आई रिमेंबर एज कट. कैटा इज कट एंड कट मीन्स यू आर ब्रेकिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल. एना इज क्लोजर, ब्रिंगिंग थिंग्स क्लोजर, चीजों को जोड़ना, चीजों को बनाए रखना. सो कैटा इज ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज मॉलिक्यूल. दिस इज वन टेक्निक. वन मोर टेक्निक जो मैंने हमेशा फॉलो किया है, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट्स विद सी एंड सी कुड गिव यू अ वर्ड दैट इज कंस्ट्रक्टिव. उसका उल्टा कर दो, डिस्ट्रक्टिव, है ना? डीजी मैम की ट्रिक्स बहुत बढ़िया. तो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ गाइस. सो यू कैन सी दैट, राइट? Let me just take a different pen for you. So anabolism is building up reactions, है ना? Anabolism मतलब कुछ बनाना. Can you see? छोटे छोटे molecules 1 2 3 4 5 6, कितने सारे हमने छोटे छोटे molecules लिए हैं, and we are making one large molecule. इस टाइम पे क्या हो रही है? Can you see energy? Energy, ठीक है, दिख रहा है आपको? जब हम छोटे छोटे molecules को जोड़ रहे हैं, so you can see the energy, राइट? अब मुझे ये बताओ, ये आपके ऊपर है. अब मुझे आप ये बताओगे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दिस इज योर टास्क फॉर द नेक्स्ट क्लास. याद रखो,
एना एंड कैटा में which one is exothermic, which one is endothermic, or both are exothermic, right? So that is one task for you, my dear kids. So types of metabolism हो गया. For example, photosynthesis. ये a very important reaction जहाँ पे हम स्टार्च बना रहे हैं ग्लूकोज से. ठीक है, पहले हमने ग्लूकोज बनाया by photosynthesis and then हम कर रहे हैं स्टार्च में कन्वर्ट. So glucose is a small molecule, it's a monomer, it's a monosaccharide, and starch is a complex polysaccharide. ठीक है, आ गया समझ में, चमक गया, माहौल बन गया. चलो, सो कैटाबोलिज्म ब्रेक डाउनिंग द रिएक्शंस. रेस्पिरेशन में हम फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. वी आर ऑक्सीडाइजिंग द फूड with the help of oxygen, right? Whether it is aerobic, whether it is anaerobic, oxygen use कर रहे हो नहीं कर रहे हो, but ultimately we are breaking down the food. Yes or no? Everyone, you all agree with DG ma'am on this part कि respiration में we are breaking and photosynthesis में जब starch से glucose आएगा तब हम कुछ बना रहे हैं, right? The first property अब आता है real sense में. अगर आप बात करो living organism की, ये देखो, दो आपके पास एनिमेशन है ब्यूटीफुल. ठीक है, एक है पहाड़, राइट? इमेजिन दैट यू आर गोइंग इन अ सुनसान रास्ता एंड बहुत सारे पहाड़ और पहाड़ डबल हो रहे हैं अचानक से, है ना? बिल्कुल ऐसे कभी होगा नहीं होगा. सो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल्स. ये याद रखना कि जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, अगर उसका ग्रोथ ऐसा है कि उसको आप बैक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिवर्स इट बैक, दैट इज बेसिकली अ क्राइटेरिया फॉर एनीवन टू बी कॉल्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब आप एक्रीशन देखो, एक्रीशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर. पहाड़ पे जब पहाड़ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कभी वो पहाड़ वापस डिक्रीज नहीं हो सकता? हो सकता है मैडम, है ना? सो एक्रीशन मतलब नॉन लिविंग पार्टिकल्स में नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेट होना. सो लाइक माउंटेन, स्टोन्स, क्रिस्टल. कैन यू सी द ब्यूटीफुल एनिमेशन, कैसे पत्थर बढ़ रहे हैं. सो बट इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना? रिमेंबर दैट, ठीक है? सो यू विल से कि मैम मैं चेयर लेके आ गई हूँ, मतलब मेरे पास एक रूम था उसमें चेयर थी एक, और मैम मैंने ना 10 चेयर और खरीद ली, तो ये देखो मैम ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. नहीं, ठीक है, वो चेयर तो कोई भी उठा के ले जाएगा, राइट? ओके, मूविंग अहेड. अगर ग्रोथ की मैं बात करूँ रियल सेंस में, सो व्हेन आई टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, लाइक मैं, लाइक आप, ठीक है, यू सी द ब्यूटीफुल एनिमेशन हाउ द ग्रोथ टेक्स प्लेस. दिख रहा है द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट. कैन यू ऑल सी दिस? अ ब्यूटीफुल बॉटनी एनिमेशन, है ना? तो ये होता है रियल सेंस में ग्रोथ, ठीक है? सो ग्रोथ प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट का ग्रोथ तो बहुत अनलिमिटेड जाता है. रे याद रखना हमेशा, प्लांट हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है? एनिमल्स में तो अप टू सर्टेन, ऐसा थोड़ी कि अभी दीक्षा मैम और कोई लंबी होने वाली है ना? दीक्षा मैम को जितना लंबा होना था उतना हो गया. आई हैव अटेन दैट मच हाइट. ओके, वेट वेट फिर भी बढ़ सकता है, बट आई हैव अटेन दैट मच हाइट, राइट? रिगार्डिंग ग्रोथ इफ आई टॉक, है ना? तो वो बिल्कुल अब हो गया, अब बिल्कुल खत्म हो गया है काम. एंड यू कैन सी द लिजर्ड्स, यू कैन सी द टेल, यू कैन सी ऑल द प्रोसेस. लिजर्ड से वो क्या बन रहा है? फ्रॉग बन रहा है. टैडपोल, इट्स एक्चुअली a story of, in animation you can see कि एक story है, the frog is getting converted from a tadpole to a adult frog, and tadpole में tail होता है, frog में tail नहीं होता. So cell division होगा to replace the losses. अगर for example when we talk about multicellular organisms, living organisms, a cell division process which is mitosis meiosis बहुत important है, so that we can replace the losses. अगर gametes को replace करना है मेरे बच्चों तो क्या करोगे? If you want to replace gametes with cell division, in the chat box, and if you want to replace somatic cells with cell division, gametes को replace करने के लिए meiosis, right? Somatic cells means all the other cells except gametes. Skin के cells, मतलब अब कहीं गिर पड़ गए, है ना? डीजी मैम भी जब छोटी थी तो गिर पड़ जाती थी कहीं कहीं पे, तो क्या होता था? चोट लग जाती थी. I got injury, but we could have replaced it, right? How we did that? We surely did, right? That's why I'm alive. Okay, so somatic cells has undergone mitosis. Clear? चलो, so ये हो गया. Reproduction is a very important property. Formation of new individuals of similar kind, a very important property. अब चेयर को आप रिप्रोड्यूस करते हुए नहीं देखोगे, है ना? आप इस पेन को रिप्रोड्यूस करते हुए नहीं देखोगे.
फॉर एग्जाम्पल यू सडनली आर सीइंग इन द वीडियो, ये पेन अचानक से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, सब भाग जाओगे डर के मारे, राइट? सो asexual reproduction, sexual reproduction, ठीक है? So asexual we all know, one parent. Which organisms shows asexual reproduction and which organisms shows sexual reproduction? Even for animals I can say sponges भी asexual reproduction करते हैं. You might have studied in zoology. Asexual में बैक्टीरिया करता है, फंगस करता है, algae does the asexual reproduction, protista does asexual reproduction, plants does vegetative propagation, okay? Human being never. Animals में if I talk about the lower invertebrates undergo asexual reproduction, and there are some infertile couples also. Mules भी एक तरह का है, वर्कर बीज भी है. म्यूल्स क्या था? इट्स अ हाइब्रिड, राइट? किसका? फीमेल डोंकी एंड आई गेस मेल हॉर्स, राइट? इन दोनों को हमने हाइब्रिड बनाया था, एंड देन वी गॉट द म्यूल्स, एंड सिंस दे हैव 63 क्रोमोसोम, रिमेंबर दैट्स व्हाई दे आर इनफर्टाइल, राइट? सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. वी ऑल नो वर्कर बीज, द मेल बीज, वर्कर बीज मेल बीज होती हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं. और ह्यूमन कपल्स भी कभी कभी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम दे कुड ऑल्सो बी अ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल. सो इट मीन्स कि ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन, ठीक है, could be one more defining property, but only reproduction is not a defining property, ठीक है? So जैसे हमने पढ़ा growth in this slide, once you go ahead for reproduction, so you have to see all the criterias, my dear kids. Third criteria, ये किस किस के साथ हुआ है? How many of you have faced this कि गरम गरम तवे पे या गरम गरम प्लेट में you have just touched and you do ouch, okay? और कितने लोग बिल्कुल ouch नहीं करते, right? You feel that you enjoy that moment. अरे ये तो गरम है, मजा आ रहा है, बिल्कुल, है ना? तो कौन कर रहा है? So consciousness is allowing us to respond this to the external stimuli. Awareness of the surrounding and response to external stimuli is very very important. मतलब you should be aware what is happening and how it could happen. It could definitely happen by the nervous system. Agreed? द नर्वस सिस्टम अ सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स. तो ये किसी के साथ हुआ है? आनंद आ रहा है, बिल्कुल गर्म पानी में हाथ रख दिया बट हाथ नहीं हटाया. कौन है वो? जाबाज सिपाही. ओके, सो स्टिमुली इज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. देयर कुड बी एनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस. इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. अब हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की अगर हम सिर्फ ग्रोथ की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं. अगर हम सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात करें सो देर आर सम कपल्स विच आर इनफर्टाइल, वर्कर बीज है, म्यूल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं. तो हम थर्ड कॉन्शियसनेस पे आ गए कि अगर वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अगर नेग्लेक्ट करो थोड़ा सा, तो कॉन्शियसनेस इज वन की फीचर. एंड ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, इवन प्लांट्स हैव. They don't have a nervous system, but they do have some sort of strategy. Touch me not plant. How many of you love touching that plant? And how many of you love that phase when it closes the small leaves? Okay, mimosa pudica, right? The scientific name. Samosa pudina नहीं है, mimosa pudica है, right? चलो. So next, coming to the next part, हो गया growth, reproduction, consciousness, ठीक है? Diversity. You see so many amazing creature. One such amazing creature is in front of you. Your favorite DG ma'am, and बाकी सारे मेरे बच्चे chat box में, ठीक है? So don't worry, ma'am will be there in the chat box too, ठीक है? So number and types of organisms present on earth is diversity. So it differ in morphology, that is outline, साइज, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नाटा, कलर, कोई काला, कोई गोरा, कोई ग्रीन, राइट? प्लांट्स, कोई रेड, एनाटॉमी, इवन इंटरनल स्ट्रक्चर. नॉट एवरीवन इज हैविंग द सेम साइज ऑफ ऑर्गन. लेट्स से थोड़ा सा 19-20 तो होता ही है ना. हैबिटेट्स, द प्लेस वेयर दे आर लिविंग ऑल्सो मैटर. आपको कोई फ्रेंड रहे जम्मू कश्मीर में, आप रह रहे हो बंगाल में. डीजी मैम रह रही है वेस्ट बंगाल में, डीजी मैम को कोई फ्रेंड फॉरेन चला गया, है ना? These are some habitats and habits also. The lifestyle also matters, ठीक है? तो ये हो गया. अब नंबर ऑफ स्पीशीज कितने कितने हैं ये याद रख लो. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एनिमल्स आर 1.25 मिलियन, इंसेक्ट्स हैं 1.025 मिलियन. मतलब इंसेक्ट भी कहीं कम नहीं है बेटा. इंसेक्ट्स कह रहे हैं अरे वो सांबा हम क्यों पीछे रहे. और प्लांट्स कैन यू सी 0.5 मिलियन, राइट? सो दीज आर द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड टोटल हो गया 1.7 to 1.8 मिलियन. टोटल हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे, बट अगर इन दोनों को काउंट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, राइट? इट कुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन. तो दिस विल वैरी, अंडरस्टूड? So beautiful flowers, beautiful insects doing pollination, and we should embrace our nature, right? So इस कोरोना से हमें इतना तो पता चल गया कि what is the value of everything that we have in our life, whether it is friends, whether it is nature, whether it is going to a mall,
whether it is eating outside. So guys, on that great and beautiful note, let's just end the session here, and don't forget to subscribe to the channel. We need to make easy, okay? And yes, iske baad मंडे को वी आर गोइंग टू हैव, रिमेंबर दैट नीट 2020 वाले जो स्टूडेंट्स हैं एंड इवन एनी ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, वी आर गोइंग टू हैव अ मेगा क्विज ऑन इकोलॉजी के लाइव सेशन में भी मेगा क्विज होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आई गेस 50 क्वेश्चंस, राइट? मेंटी क्विज, सो बी रेडी फॉर द मेगा क्विज ऑन इकोलॉजी मंडे, ठीक है? ओके, so let's just go ahead, and yes, one more information before going ahead, that every day we'll be sending homeworks to you in the telegram, तो ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है? एंड ये 2020 के जो बैच वाले बच्चे हैं, if you want to do more better, please join vdnt.in/neetcc, DKCC का कूपन कोड लगाओ, सो कम ऑन बच्चों, डू इट, राइट? एंड लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन प्रो मैंने आपको बता दिया था, यूज द कोड DK Pro, ठीक है? विजिट vdnt.in/ytpro, एंड यस, दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम जहाँ पे होमवर्क्स आएंगे आपको, ठीक है? सो प्लीज प्लीज प्लीज, राइट, इंस्टॉल द टेलीग्राम, ज्वाइन द लिंक, ठीक है? वी नीड ऑफिशियल पे आप क्लिक करो एंड दिस लिंक, ठीक है? उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, एंड एवरी डे यू विल गेट होमवर्क्स, 10 MCQs they will be there based on the NEET exams, and you please solve it and let me know if you have any doubt in the next class, ठीक है? Get a chance to win Vedantu t-shirt obviously, ठीक है? चलो, so यूजर्स चॉइस ऐप अवार्ड मिला है 2019 में वेदांतु को, आई एम रियली ब्लेस्ड, राइट, दैट आवर कंपनी गॉट दिस। चलो ठीक है, सो बहुत बढ़िया बात है ये तो, इसके लिए वेदांतु का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? एंड प्लीज रेट अस ऑन द गूगल प्ले स्टोर। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आप लाइक करते हो बहुत खुशी होती है, शेयर करते हो तो उससे ज्यादा खुशी होती है, और सब्सक्राइब कर दोगे तो आनंद आ जाएगा। चलो, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन माय डियर किड्स, ठीक है? आज के लिए इतना ही, एंड यस, अ हैप्पी गणेश चतुर्थी, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।